This is the session for multimedia and animation technology for CSC diploma third semester. And in previous session, we have demonstrated few of the tools of Photoshop version 7, and we worked with a few of the selection tools, and then we had seen the demonstration of healing tool, patch tool. So let's continue with some other tools. Let's explore some other tools as well. So in previous session, we are done with these tools, and moreover, we have seen the working of healing tool and patch tool, then clone. So moving on with the same, let's first, I need to open an image, then we'll see the working of some other tools. So I'll be choosing this image today. Yeah, that's fine. So let's zoom it first. So everyone, my screen is visible to you all? Anyone just confirm me? Yes, Bhupinder, Karan, Prabdeep, Ranjot. All right, so I got the responses from Bhupinder and Karan. Screen is visible. Okay, thank you. So let's continue. So let's see firstly the working of eraser. This is the eraser. So under this we have various options for eraser as well. So simple eraser, just it will be erasing your image color. So layer will not be erased, but image color will be erased here. And similarly we have the option. So you can check here, the background is been selected with the same color. The color was priorly white, so now it is been selected to. So it is selecting all the shades of background color here. See, the lighter shade has picked the darker one. So it is how changing the background colors. And so as per your requirement, you can choose for any of the option. Then moving on to other, we are having this magic eraser tool. So for magic eraser, it will erase all the similar shades or patterns at once. ठीक है, आपको अलग अलग चूज नहीं करना पड़ रहा है. ये सिमिलर शेड्स और पिक्सल्स जहां भी आएंगे वो सारे के सारे एक ही साथ डिलीट कर देगा उनको. So this is how the magnetic eraser is working. So let's ignore the changes here. So I hope eraser tool is clear. So as per your requirement, you can opt for any of the option as required. Afterwards, we have blur tool, sharpen tool, and smudge tool. So let's see the working of these. Firstly, let's go for blur tool. So for blurring, we can increase the brush size as well. So strength you can also increase or decrease. कितना blur चाहिए आपको, ज़्यादा कम, according to your need you can go for it. So you can here visualize it is blurring on. तो यहाँ मैं अगर स्ट्रेंथ थोड़ी सी इंक्रीज भी कर देती हूँ तो ये ज़्यादा ब्लर होना शुरू हो जाएगा.
So I hope the effect is visible to you. Yes. Yes, ma'am. All right. Thank you. So the next one we are having is sharpen tool. Sharpen tool में भी आपको options मिल जाएंगी. You can opt for any size of the brush, and you can increase or decrease the strength as well. The modes, we have different modes, so as per your choice you can opt for any. So see, it is sharpening the pixels. कोई भी एक पिक्सल है उसके coloration जो है उनको और deeper और sharper कर रहा है ये. Fine. So you can see over here. ठीक है. सो इसका और यूजेज जो है मैं फिल्टर्स में भी बताऊंगी, आपको और क्लियर हो जाएगा. देन आफ्टरवर्ड्स वी हैव स्मज टूल. स्मज टूल बेसिकली क्या करता है, आपके जितने भी कलर्स हैं उनको मिक्स कर देता है, स्मज ऑफ कर देता है. ठीक है. सो सी हियर, ये आपके जितने कलर्स हैं पिक्सेल्स है सबको मिला रहा है आपस में. सो दिस इज हाउ स्मजिंग इज डन. कोई भी कलरेशन है, आप इनके साइजेस अलग अलग ले सकते हैं. तो इसी के अक्रॉस आपको कुछ माइनर स्मजिंग दिखानी है तो आप इस तरह से दिखा सकते हैं. तो स्मज टूल का भी मैं और एलैबोरेट करूंगी आपको. देन वी हैव few of these tools. Let me just first change the image. Let's work on some other image. So let's pick this one. So these are the three tools. One is dodge. So before working with dodge, let's just first work with burn. So this is the burn tool. So burn tool का आप इफेक्ट देखिए, जितने भी शेड्स हैं ये और डीपर और डार्कर हो रहे हैं. ठीक है. ब्राइटनेस इसकी जो है वो जा रही है. तो आप कलर एंड कंट्रास्ट पे काम कर सकते हैं इस तरह. The impact is visible, I hope. And then we have dodge tool. तो dodge tool क्या कर रहा है, उसको और ब्राइटर कर रहा है. तो आप इसको और लाइटन आप या डार्कर टोन में कर सकते हैं किसी भी इमेज को. ठीक है. सो मोस्टली ये वाला टूल आप लोगों ने देखा होगा जब भी आप पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ के लिए जाते हो फोटोशॉप पे, वो मोस्टली यही एडिट करते हैं टू सेट द कलरेशन. अगर डीपर डार्कर करनी है तो दे विल यूज बर्न, अदरवाइज दे विल यूज डॉज. So we'll be doing one or two of the assignments based on this as well in the upcoming session, जिसमें आपको और क्लियर हो जाएगा. Then we have the sponge tool. So sponge tool ये आप देख सकते हैं, जितना भी कलर है एक्स्ट्रा कलर जो है आपका पिक कर लेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा. किसी चाहे वो ज्यादा डार्कन है. तो यहाँ पे मैं इसको थोड़ा सा डार्क कर देती हूँ, आपको इफेक्ट्स और क्लियरली विजिबल होंगे. सो डॉज एंड बर्न जो है वो लाइटन अप और लाइटन डाउन करते हैं. एंड स्पॉन्ज जो है उसी कलर को, उसी पिक्सल कलर्स को, उन्हीं पैचेस को एब्जॉर्ब कर रहा है. ये देखिए अब डार्क और डार्क होता जाएगा ये.
ठीक है, सारा कलर ये एब्जॉर्ब करता जाएगा लाइक अ स्पॉन्ज। तो इस तरह से आप ब्लैक वाइट इफेक्ट्स भी दे सकते हैं, कितनी इंटेंसिटी एक पर्टिकुलर कलर की रखनी है या हटानी है आप कौन से यूज कर सकते हैं। देन अपार्ट फ्रॉम दिस वी हैव दीज रेगुलर टूल्स जो आप पेंट में भी यूज करते हैं, द टेक्स्ट, वर्टिकल टेक्स्ट, मास्किंग, ये आप एक्सप्लोर कर सकते हैं खुद से भी। ठीक है, तो दिस इज योर इमेज। इस पे हम आई ड्रॉपर यूज करके देखते हैं वो। सो व्हाट इज आई ड्रॉपर बेसिकली, इसमें आई ड्रॉपर इज मोर ऑफ लाइक पिकिंग अप। इसमें आप कलर जो है उसको पिक करते हो। ठीक है, जैसे आपके ये 4 कलर एंड बैक कलर जो हैं वो ब्लैक एंड वाइट हैं। सो मुझे आई ड्रॉपर में कुछ और कलर्स चाहिए जो मैं कहीं और यूज कर सकूं। सो आई ड्रॉपर में क्या होता है, लेट्स सी, ये जो है यहाँ से ये कलर मैंने पिक कर लिया। नाउ यू कैन सी ओवर हेयर, ये मेरा 4 कलर चूज हो गया। तो मुझे स्वैचेस में से ये जो जहाँ आपके कलर्स दिए हुए हैं यहाँ से इंटेंसिटी फाइंड आउट करने की जरूरत नहीं है। अदरवाइज मैं यहाँ से भी कर सकती हूँ। ये देखिए, कोई भी कलर मैं यहाँ से पिक कर सकती हूँ अपने 4 कलर का। ठीक है, तो यहाँ से मुझे कलर नहीं पिक करना, रादर मुझे मेरी इसी इमेज में से कोई और कलर पसंद आ रहा है जो मैं कहीं यूज करना चाहती हूँ, रिपीट करना चाहती हूँ। सो आई सिंपली पिक द कलर फ्रॉम दैट। सो ये देखिए, यहाँ मैंने क्लिक किया और ये पीच कलर मेरा 4 कलर सेलेक्ट हो गया। फाइन। सो यही पर्पज होता है आई ड्रॉपर का। सो यू कैन पिक एनी ऑफ द शेड, एनी ऑफ द कलर एंड यूज इट एनीवेयर। अब मैं इसको किसी भी इमेज पे या इसी इमेज पे कहीं पे भी कलर करना है तो मैं इसी को यूज कर सकती हूँ। So I hope I have cleared many of the tools amongst them. Rest you can explore by your own, और हम अभी assignments करेंगे upcoming sessions में इन्हीं के basis पे, तो वहाँ जैसे जैसे यूज होंगे आपको और क्लियर होता जाएगा। So I hope basics are clear and we'll be working with filters now. So these are few of the filters. यहाँ पे आप ऑप्शन चेक कर रहे हैं फिल्टर्स की, एंड दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग कंसेप्ट ऑफ फोटोशॉप। फिल्टर्स हम किसी भी इमेज को एडिट करने के लिए यूज करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। लिक्विफाई इज मोर ऑफ लाइक, ये आपको ये कलर्स को एज ए लिक्विड ट्रीट करेगा, जैसे हमारे वाटर कलर्स होते हैं। तो आप इनको मिक्स भी कर सकते हैं। आई विल जस्ट शो यू वन। आप किस इनमें से किसी भी पैटर्न में मिक्सिंग कर सकते हैं। सो लेट्स से मैंने ये चूज किया है, तो ब्रश साइज में यहाँ से इंक्रीज डिक्रीज कर सकती हूँ। सो दिस इज माय साइज। सो ये आप देख रहे हैं, ये वाटरी इफेक्ट जो है वो कलर्स में दे रहा है। ये देखिए, मैंने एक जगह पॉइंट करके इसको क्लिक कर रही हूँ एंड यू कैन सी कि कलर्स कैसे मिक्स हो रहे हैं। I hope it is visible. Just let me increase the size so the visibility is more. So this is the size. See how it is mixing the colors. किस तरह से मिक्स हो रहे हैं। ठीक है, इसी तरह ये आपके पास अलग अलग मोशंस हैं जिनमें आप मिक्स कर सकते हैं। ये वेवी है, तो ये देखिए ये वेव की तरह आपका होता जाएगा। तो इस तरह से आप कलर मिक्सिंग कर सकते हैं एज पर योर नीड।
सो इसी तरह ही रिकंस्ट्रक्ट टूल है, रिकंस्ट्रक्ट टूल में यूज करूंगी तो जहां भी मैंने लिक्विफिकेशन अप्लाई की है वो सारा का सारा मेरा नॉर्मल होता जाएगा और ये देखिए मेरी इमेज दोबारा से रिकंस्ट्रक्ट हो गई है। ठीक है, ये मेरी सारी की सारी इमेज दोबारा से रिकंस्ट्रक्ट हो गई है बाय यूजिंग रिकंस्ट्रक्ट टूल। सो इसी तरह ही लिक्विफाई में आपके पास और ऑप्शंस हैं, आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। हर ऑप्शन के रिगार्डिंग आपको ये प्रॉपर्टीज मिल जाएंगी। ठीक है, अकॉर्डिंगली आप इन प्रॉपर्टीज को चेंज कर सकते हैं एज पर योर रिक्वायरमेंट। Then apart from this, under filters we are having few of more of the tools. The one is artistic. Artistic में further आपके पास बहुत options आ जाएंगी, so we'll be exploring a few. Let's say this is the colored pencil effect. ये देखिए आप इसमें इनकी पेंसिल विड्थ जो है वो इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं, और जितनी कम पेंसिल विड्थ होगी उतने स्ट्रोक्स फाइनर और शार्पन होंगे। सो यू कैन चेक फॉर दिस, ये स्ट्रोक्स हैं कितनी ज़्यादा स्ट्रोक्स चाहिए या कम चाहिए, जितनी कम होंगी उतनी कलरेशंस जो हैं आपकी कम विजिबल होंगी। तो इस तरह से आप अपनी इमेज को किसी भी तरह आप चेंज कर सकते हैं। देन वी हैव under artistic we have let's check with palette knife. तो ये देखिए पैलेट नाइफ्स हैं, ये मोर ऑफ लाइक जैसे आप स्केचेस करते हैं, स्क्वाड्स करते हैं आर्ट्स में, आप स्पैचुला के साथ कलर्स करते हैं, तो ये वो वाला इफेक्ट आपको दे रहा है। ये देखिए जितने स्ट्रोक्स जो हैं कम होंगे उतना ही आपकी इमेज क्लियर आ रही है, जितने ज़्यादा हैं उतने स्ट्रोक्स आपके वाइडर हैं और उतनी नीटनेस चली जाएगी इमेज की। सो यू कैन कन्वर्ट टू एनी साइज, कितनी डिटेलिंग आपको चाहिए इमेज में, कितनी नहीं, सॉफ्टनेस कितनी चाहिए, तो आप अकॉर्डिंगली ये चीज़ें जो हैं अपनी प्रॉपर्टीज चेंज करके इमेज फीचर्स चेंज कर सकते हैं। सो नेक्स्ट वी हैव, यू कैन एक्सप्लोर एनी ऑफ दीज। ये आपके पास बहुत ऑप्शंस हैं, आप इनमें से कोई भी एक्सप्लोर कर सकते हैं, जैसे जैसे प्रैक्टिस करेंगे आपको और क्लियर होता जाएगा। सो वी हैव द स्पॉन्ज एज वेल, जैसे आप स्पॉन्ज के साथ टैबिंग करते हैं आर्ट्स में, तो कलर लेते हैं स्पॉन्ज के साथ टैब करते हुए इमेज बनाते हैं, तो ये उसी तरह का ही इफेक्ट है। सो इसमें ब्रश साइज एज इन स्पॉन्ज साइज आप कितना ले रहे हैं वो वेरी कर सकता है, उसकी डेफिनेशंस सेट कर सकते हैं, स्मूथनेस कर सकते हैं। सो आपको किस तरह की इमेज एंड रिजल्ट में चाहिए आप इस तरह से जनरेट कर पाएंगे। सो सिमिलरली वी हैव फ्यू मोर ऑफ द, आप इसमें से बच्चे कोई भी ऑप्शन जो है वो एक्सप्लोर कर सकते हो। ठीक है, सो वी आर मूविंग टू नेक्स्ट फिल्टर दैट इज ब्लर। ब्लर टूल भी हमने यूज किया है फॉर ब्लरिंग, आप ब्लर ज्यादा भी कर सकते हो कम भी कर सकते हो, बट ब्लर इफेक्ट में ब्लर टूल के साथ आपको लिमिटेड प्रॉपर्टीज और लिमिटेड इफेक्ट्स ही मिलते हैं, बट व्हेन वी आर वर्किंग विद फिल्टर्स इट इज प्रोवाइडिंग अस विद मोर ब्लर इफेक्ट। सो ब्लर में भी आपके पास कुछ ऑप्शंस आ जाएंगी। जैसे आपके पास गॉसियन ब्लर आ जाता है, गॉसियन ब्लर में आप इफेक्ट देख सकते हैं, रेडियस चेक कर सकते हैं, ये किस तरह का इफेक्ट आ रहा है। ठीक है, तो ब्लर आपको कितना चाहिए, कितनी इंटेंसिटी ब्लर की चाहिए वो आप चेक कर सकते हैं, एंड यू कैन सेट अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट। फाइन। सो इसी तरह से ही ब्लर में मेरे पास मोशन ब्लर आ जाता है। इट इज मोर ऑफ लाइक द इफेक्ट, आप जैसे मूवमेंट कर रहे हैं, लेट्स से आप कार में कहीं जा रहे हैं, बाहर का व्यू आपको ब्लरी दिखेगा और रनिंग में ब्लरी दिखेगा। सो इट इज अ वेरी स्लाइट इफेक्ट ओवर हेयर ऑफ मोशन। ज्यादा इफेक्ट देखना है मैं आपको यहाँ दिखा देती हूँ।
ये देखिए, ये है आपका ब्लर इफेक्ट, ये थोड़ा हाई स्पीड इफेक्ट है। सिमिलरली ये और ज़्यादा स्पीडी मोशन है। तो इस तरह से आप वेरी कर सकते हैं एज पर योर रिक्वायरमेंट। देन वी हैव अंडर ब्लर स्मार्ट ब्लर, रेडियल ब्लर। सो आप कोई भी इनमें से यूज कर सकते हैं। सो दिस इज द इम्पैक्ट ऑफ स्मार्ट ब्लर। इसमें देखिए पीछे की जो है इमेज वो ज़्यादा ब्लर हो रही है, जबकि ये आगे वाला जो है इतना नहीं हो रहा है। और थ्रेशोल्ड में वी कैन सेट कि किस लिमिट तक आपको ब्लरीनेस चाहिए है। So that is the minimum or maximum level of blurriness. So medium, high you can also set here. Modes you can set, you need edgy one or overlay. तो आपको जिस तरह का भी चाहिए आप यहाँ पे सेट कर सकते हैं अकॉर्डिंगली। Then afterwards we have brush strokes. So अभी तक हमने ब्रशेज या स्वैचेस जो भी यूज़ किया है उसमें हमें सिर्फ साइजेस मिलते हैं। हम ब्रश का साइज इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं, पर स्ट्रोक्स नहीं मिल रही थी। सो लेट्स सी विद ब्रश स्ट्रोक्स। तो एक हमारे पास स्ट्रोक्स इस तरह की आ जाती है, ये आप देख रहे हैं इफेक्ट, ये वेवी इफेक्ट आ रहा है स्ट्रोक्स का। तो किस तरह की एज चाहिए आपको, ब्राइटन किस तरह का चाहिए, यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। फाइन। देन वी हैव क्रॉस स्केच। क्रॉस हैच में ये देखिए, ये जो पिक्सेल्स हैं या कलरेशन है, कलर स्ट्रोक्स हैं, ये आपको क्रॉस क्रॉस की फॉर्म में मिल रहे हैं। यहाँ ज़्यादा क्लियर है, क्रॉस क्रॉस की फॉर्म में आपको स्ट्रोक्स मिल रहे हैं। सो स्ट्रोक लेंथ यहाँ से आप डिफाइन कर सकते हैं। ये देखिए क्रॉस उतने बड़े होते गए हैं आपके। तो शार्पन आपको कितना चाहिए आप इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं। स्ट्रेंथ भी इंक्रीज डिक्रीज हो सकती है। सो सारी इमेज आपकी क्रॉस पैटर्न में बन रही है यहाँ। ठीक है। सो आर्टिस्टिक स्ट्रोक, आपको ब्रश स्ट्रोक किस तरह की चाहिए वो भी आप डिफाइन कर सकते हो। अपार्ट फ्रॉम दिस वी हैव ink outline we can check for. So this is how ink outline works. जो भी कलर है आपका वो लाइंस में आ रहा है। ये देखिए उस कलर, जहाँ भी कलर चेंज हो रहा है वहाँ पे एक आउटलाइन बनी हुई आ रही है आपकी। तो यहाँ भी हम स्ट्रोक्स जो है वो चेंज कर सकते हैं एज पर अवर रिक्वायरमेंट। जिस तरह भी आप कलर इफेक्ट पे काम करना चाहें अकॉर्डिंगली आप चूज कर सकते हैं। देन वी हैव डिस्टॉर्ट। ब्रश स्ट्रोक्स में आप और एक्सप्लोर कर सकते हैं कौन से स्ट्रोक्स हैं, उनकी क्या प्रॉपर्टीज हैं, यू कैन एक्सप्लोर बाय योर ओन। देन वी हैव डिस्टॉर्ट। तो डिस्टॉर्ट में बेसिकली इट डिफ्यूजेस द कलर। लेट्स सी हाउ। तो ग्लास चेक करते हैं, ये देखिए ग्लास मिरर इफेक्ट आ गया है। सो आपको किस तरह का इफेक्ट चाहिए ये भी आप चेंज कर सकते हैं। यहाँ स्मूथ चाहिए स्मूथ कर सकते हैं, रफ ही कर सकते हैं, पर ये आपको ग्लास इफेक्ट देगा। टेक्सचर्स हैं, टेक्सचर आपको डेंस चाहिए लेस डेंसर चाहिए, आप अकॉर्डिंगली चूज कर सकते हैं। ठीक है। देन वी हैव डिस्प्लेस। डिस्प्लेस में भी आप प्रॉपर्टीज सेट कर सकते हैं अकॉर्डिंगली, कितने परसेंट का आपको स्केल अप चाहिए, स्ट्रेचिंग कितने की चाहिए। सो इस तरह से आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। आफ्टरवर्ड्स वी हैव ओशन रिपल। ये देखिए जैसे वेवी इफेक्ट्स आपको चाहिए ओशंस के, उस तरह से आप ले सकते हैं। इट इज मोर ऑफ वाटरी इफेक्ट। ठीक है।
Then similarly we have all the filters over here. Let's move on to the next one. We have noise. नॉइस में क्या है कि आपको अपनी इमेज की शार्पनेस कम करनी है या कुछ और पिक्सल्स ऐड करनी है. सो ऐड नॉइस. बाय एडिंग नॉइस आप ये देख रहे हैं एडिशनल पिक्सल्स ऐड हो रहे हैं. तो अगर आप डिस्टॉर्ट करना चाहते हैं क्वालिटी तो आप इस तरह से कर सकते हैं. सो कुछ सिनेरियोज हैं जहाँ ये बहुत बेनिफिशियल है. तो ये यूनिफॉर्म इफेक्ट आ रहा है आपका. ये देखिए इसी तरह ही आप गॉसियन इफेक्ट कर सकते हैं. गॉसियन में आपका कहीं डेंस होगा कहीं लेस डेंस होगा. सो आप अकॉर्डिंगली चूज कर सकते हैं. सो नेक्स्ट वी हैव अंडर नॉइस. आप कोई भी चूज कर सकते हैं. डस्ट एंड स्क्रैचेस, इसमें भी रेडियस कर सकते हैं increase. Then we have a threshold limit as well. ठीक है. Now we can choose for any of these. इसमें हम textures करके देखते हैं. textures में we have grain. so इसकी intensity जो है ये देखिए इसमें इट इज मोर ऑफ लाइक नॉइज. पर नॉइज में पिक्सल्स इंसर्ट हो रहे हैं. इसमें एक पैटर्न है जो इंसर्ट हो रहा है. इसकी इंटेंसिटी हम कम ज़्यादा कर सकते हैं. ठीक है. देन कलर कंट्रास्ट की ऑप्शन भी अवेलेबल है इसमें. आप कलरेशन भी अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइज कर सकते हैं. एंड ग्रेन टाइप यू कैन चेक फॉर. ये किस तरह का ग्रेन आपको चाहिए इसमें. देखिए ये अलग अलग इफेक्ट्स है हमारे पास. तो आप कोई भी इसमें से चूज कर सकते हैं. तो इसी तरह ही वी हैव टेक्सचर. टेक्सचर्स में वी हैव पैच वर्क. तो पैच वर्क में ये देखिए पैचेस जो हैं ये इंक्लूड हो जाएंगे कलरेशन के अकॉर्डिंग. सो पैच साइज जो है वो आप इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं. ठीक है. तो आपको अपने अकॉर्डिंग कोई भी इफेक्ट दे सकते हैं. और जितने भी आपके पास फिल्टर्स हैं आप इनको एक्सप्लोर कर सकते हैं. किसी भी इमेज को आप एडिट कर सकते हैं, एनहेंस कर सकते हैं या डिस्टॉर्ट भी कर सकते हैं. सो इट इज अकॉर्डिंग टू योर चॉइस. सो वी हैव स्टाइल्स. स्टाइल्स में एम्बॉस देखते हैं. ये देखिए ये एम्बॉस हो गया आपका. जहाँ जहाँ भी आपके इमेज पैटर्न्स थे वो आपके एम्बॉस अप हो चुके हैं. इसी तरह ही आप एम्बॉस का एंगल सेट कर सकते हैं किस एंगल पे आपको एम्बॉस करना है. ठीक है. तो ये आपका एम्बॉस इफेक्ट आ गया है. So similarly you can explore for other filter options as well. So this is all about filters, how we can use the filters. And in upcoming session we'll be having some assignments. मैं कुछ assignments यहाँ demonstrate करूँगी. उसमें हम use करेंगे filters and the tools. तो आपको और clear हो जाएगा इसमें. So guys this is all about filters and the discussion is over here. So